Now beta see, we have chapter second, relation and function, we know that, and this miscellaneous exercise we are going to do today. So already we have discussed first question, and now question number second. Now see the question number second. Now fx is defined by fx equals to x square. And we have to find value of what we have to find. We have to find value of f 1.1 minus of f1 upon this is equals to 1.1 minus of 1. We have to find value of this. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1.1 एंड 1. सो f 1.1 according to this definition fx is equals to x square. This is 1.1 square, it will be, this is 1.21, and similarly the value of f1 is 1 square. How? By this definition we are using this definition here, and this will be 1 square is 1. Now use this value here. This is f 1.1 minus of f1 upon 1.1 minus of 1. Put this value here. This is 1.21 minus of this is 1 upon this is 0.1. On solving 0.21 upon 0.1. On solving you will get this is answer is 2.1. This is your required answer. I think this is a very simple task. You have seen. तो कुछ भी नहीं करना था और बहुत ही इजीली हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया. Now see the next question number third. In question number third we are going to find the domain of this function, and already we have done this type of question. ठीक है, अब इसके हमें डोमेन फाइंड आउट करना. तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है. अब ये फंक्शन किस तरह का है, यू कैन सी ये फंक्शन हमें दिख रहा है. दिस इज ऊपर भी न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है. The function will exist only if the denominator is not equal to 0. For domain we are talking about for domain only. So here the denominator x square minus of 8fx plus of 12, this is not equal to 0. इसको middle term splitting से split कर दो. On splitting this will gives x square minus of 6x minus of 2x plus of 12, this is not equal to 0. It is okay. On factorization you will get x minus 2 and x minus 6, 2 factors you will get. So from here you got x cannot be equal to 6 and x cannot be equal to 2. So you can see that x belongs to the all real number except 6 and 2. ठीक, these two values हमने कह दी कि x की वैल्यू all real number हो सकती है except 6 and 2. 6 और 2 include नहीं होगा, बस बाकी all values. This is the domain. So we at last we can write the domain of this function is equals to all real number except 6 and 2. Clear to all of you? Now see the next question number 4. And question number 4, the question is find the domain and range of the function. Function is given fx equals to under root x minus 1. Now we are going to find out the domain and range of this function. तो ये ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है. अब डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फॉर डोमेन. डोमेन का मतलब क्या हुआ, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या करे, एग्जिस्ट कर जाए. अब यहाँ पर देख रहे हो कि fx इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 है और रूट के अंदर है, और रूट के अंदर x माइनस 1 क्या हो सकता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. मतलब या तो 0 हो सकती है वैल्यू क्योंकि न्यूमरेटर में है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ी हो सकती है वैल्यू. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू 1 to infinity including 1. Okay, so the domain of f this function is equals to 1 to infinity. This is our domain. Already we have discussed this topic. इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको. एंड नाउ फॉर रेंज. रेंज के लिए अगर हम बात करें, अब देखो यहां पर हम क्या लेट कर लेंगे, लेट fx इक्वल्स टू y. तो y इक्वल्स टू ने fx लेट कर लिया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट x माइनस 1 आ गया. इज इट ओके?
y इक्वल्स टू क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया। अब देखो ये कोई मर्जी वैल्यू हो, किसको इस वैल्यू को बिलोंग कर रही है, 1 टू इंफिनिटी किसी को भी बिलोंग करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या देख रहे हो, तो फ्रॉम हियर यू कैन सी यार y इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको एक इक्वेशन तो पता लगे कि जो y की वैल्यू होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज तो हमें ये पता लग गई। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि जो डोमेन जो रेंज ऑफ f है वो रेंज ऑफ f कहां से लाई कर रही है, 0 टू भी इंक्लूड हो रहा है और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी तक। मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमें कहां से कहां तक दिख रही है, 0 दिखेगी और 0 से इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो यहाँ पर एक ही रिलेशन हमारे पास बनेगा, इसलिए हमने उसको हटा दिया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, दिस वैल्यू फॉर दिस डोमेन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस द y इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट द रेंज ऑफ f इज 0 to infinity including 0 also. All of you understood this? All you are getting me? Yes or no? Yes sir. समझ में आ रहा है? Okay, see the next question number 5. See the fifth question. Fifth question is saying find the domain or range of the function fx is given. fx is given. fx is given mod of x minus 1. fx is given mod of x minus 1 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है फिर से। ठीक, अब इसकी डोमेन और रेंज तो हमें बताओ नहीं चाहिए, हम किसके लिए फाइंड आउट करें, फॉर डोमेन के लिए। डोमेन, अब ये वैल्यू है, अगर हम x की कोई वैल्यू पुट कर दें, कहां से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि मॉड है, मॉड है पॉजिटिव कर देगा वैल्यू, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो ये देखना है ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं है। x की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी तो उसमें से हम 1 को माइनस कर सकते हैं। तो रियल वैल्यूज के लिए x की ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। सो वी कैन से दैट डायरेक्टली, तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ f आ गई, डोमेन ऑफ f क्या हो गई, दिस इज ऑल रियल नंबर। सीधे हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f दिस बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो इसमें ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें रेंज की बात करनी है। अगर हम रेंज की बात करें देन व्हाट, वेट करो बेटा एक मिनट। ना सही है बेटा। अब फॉर डोमेन, डोमेन तो हमें पता लग गई कि इसकी ऑल रियल नंबर्स होगी। अब हम रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज क्या हो सकती है, रेंज, अब ये मॉडुलस फंक्शन है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस x की कोई मर्जी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, तो fx का होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको पता लग गया फॉर रेंज के लिए आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ये मॉडुलस फंक्शन है, बिकॉज x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, यू नो दैट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बिलोंग कर रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पहले कह दिया डोमेन ऑफ f r है। अगर डोमेन ऑफ f r मतलब रियल नंबर है, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लाई कर रहा है। सो x माइनस 1 क्या होगा, अगर हम इंफिनिटी से 1 माइनस कर दें तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यू हमारे पास। अब ये क्या है, अगर हम इसका मॉड ऑफ कर दें, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अगर इस फंक्शन का मॉडुलस करेंगे वी गेट द पॉजिटिव वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अब हमें नेगेटिव वाले सारे नंबर छोड़ने पड़ेंगे। ये 0 हो गया, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, प्लस इंफिनिटी हो गया। इस फंक्शन के लिए x माइनस 1 के लिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की बात कर रहे थे, लेकिन मॉड ऑफ x माइनस 1 की बात करें अगर हम, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 मतलब हमें ये नेगेटिव वाला पार्ट सारा छोड़ना पड़ेगा। और पॉजिटिव वाला पार्ट कहां शुरू हो जाता है, 0 से इंफिनिटी। तो यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया 0 टू इंफिनिटी। सो इसका मतलब हमने यही लिखा, तो मॉड ऑफ x इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी। सो आपके पास fx की जो वैल्यू आ गई, fx 0 टू इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। सो द रेंज ऑफ f इज गिवन बाय 0 टू इंफिनिटी, लाइक दिस। इट इज ओके। तो सिंपल फिगर से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस फिगर से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी रेंजेस जो होंगी वो कहां से कहां तक होंगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question already we have discussed in the previous lecture. So question number 7. Seventh question, f and g are two functions. These are the two functions and these are defined from real number to real number. Now the function fx is defined by, this is x plus 1 and the function gx is defined by 2x minus of 3. इस तरह से दो function defined है. Then we have to find the value of f plus g, f minus of g and f upon of g. ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सी हियर, दिस इज, हम पहला पार्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दिस इज f प्लस जी इंटू ऑफ x, ठीक है। f प्लस जी क्या, फंक्शन ऑफ x को ऐड करने जा रहे हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज fx प्लस ऑफ gx. व्हाट इज fx? fx इज गिवन x प्लस 1. व्हाट इज gx? gx इज गिवन 2x माइनस ऑफ 3. सॉलिड, दिस इज 3x माइनस ऑफ 2. ये तो बहुत सिंपल हो गया। सेकेंड पार्ट, f माइनस जी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर x. x के लिए फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दिस कैन बी रिटन एज fx माइनस ऑफ gx. And what is fx? fx we know this value is x plus 1 and gx is 2x minus of 3, and sign will change and this will be minus of x minus of 2, and third part you will try yourself, ठीक है, you have to divide only. So this is your 7th question. Now see the next question number 8. Question number 8 is given, the function f is given 1 to 1, 2 to 3, 0 minus of 1 and minus 1 minus of 3. ये फंक्शन हमें इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। एंड बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, हमें ये डिफाइंड है f इज अ फंक्शन फ्रॉम z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, एंड fx इज डिफाइंड बाय ax प्लस b. इस तरह से हमें फॉर सम इंटीजर a एंड b वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b यहां पर। तो सी दिस, इसका सॉल्यूशन हमारे पास। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान समझना, जो हमें दिया हुआ है f1, मतलब जब x के लिए 1 होगी तो fx के लिए 1 होगी, जब x के लिए 2 होगी तो fx के लिए 3 होगी, जब x के लिए 0 होगी fx के लिए -1 होगी, जब x के लिए -1 होगी तो fx के लिए -3 होगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है और हमने उस रिलेशन को यहाँ पे यूज करना है, तो हम f1 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। f1 पे जब हमने x के लिए 1 पुट की, ये देखो x के लिए 1 पुट कर रहे हैं तो a प्लस b आ गया, और f1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, x के लिए अगर 1 होगी तो fx के लिए 1 होगी, तो ये 1 आ गया वैल्यू। तो एक रिलेशन हमें ये मिल गया है a और b में। एंड अब हम बात किसकी करें, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, f2 की बात कर लेते हैं। f2 मतलब a के प्लेस में a रहेगा और x के प्लेस में 2 आ गया b, और f2 मतलब जब x के लिए 2 है तो fx के लिए 3 है, हम यहाँ 3 पुट करेंगे, दिस इज 2a प्लस b. नाउ यू कैन सी हियर हमारे पास दो सिंपल इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम 1 minus 2, तो a plus b equals to 1, 2a plus b equals to 3. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसल आउट, माइनस ऑफ a equals to minus of 2, so the value of a will be 2. a की वैल्यू 2 आ गई, a 2 आ गया तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई, so b equals to what, यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो b equals to 1 minus
2, ये आ गई वैल्यू -1. इट इज ओके. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको समझ में आ गया हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Now see the next question. Question number 9. It is given in question number 9, R is a relation from n to n. N to n, it means what? Natural number to natural number. R is a relation from n to n defined by. What is the definition of this relation is given? AB. AB is what? This is an order pair. Order pair where both the elements are belongs to the natural number, and the relation between A and B is given A equals to B square. ये हमें given है. A equals to B square. Are the following are true? First relation we have to prove that A belongs to R or not. For all n belongs to, for all A belongs to the natural number. Is it okay? The second relation here, this is AB belongs to R. This implies that BA is also belongs to R. And the third one we have to prove that AB belongs to R and BC belongs to R. This implies that AC is also belongs to R. ये हमें प्रूव करना है ये तीनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ठीक है, तो सी हियर हाउ सॉल्यूशन है. ठीक है, पहले पार्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं. ए बिलोंग्स टू आर. तो हमने क्या कहा, इन प्लेस ऑफ ए हमने लेट कर लिया 3. ठीक है, इन प्लेस ऑफ ए 3 लेट कर लिया, तो 3 यहां भी आएगा, 3 यहां भी आएगा, तो 3,3 3,3. अब 3,3. अब देखो यहां पर रिलेशन को ध्यान से पढ़ोगे आप. ए बी था, रिलेशन क्या था, आपको ऑर्डर पेयर मिल रहा था ए बी, जबकि उनके बीच में ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर. ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर. यहां पर भी ए लिख रहे हैं हम, यहां पर भी ए लिख रहे हैं. देखो इस रिलेशन में दोनों में ए लिखा है, तो यहां पर भी ए लिखेंगे, यहां पर भी ए लिखेंगे, यहां पर भी ए लिखेंगे, यहां पर भी ए लिखेंगे. अगर हम यहां पर क्या लिख दें 3 और यहां पर क्या लिखें 3 स्क्वायर, तो 3 and 3 square are not equal, so we can say that 3 does not belongs to the given relation R. ठीक है, as we have proved here कि 3 का जो वैल्यू है 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं, बिकॉज हमने क्या किया, ए के प्लेस में भी 3 पुट किया, बी के प्लेस में भी 3 पुट किया. तो ए के प्लेस में 3 पुट कर दिया, बी के प्लेस में 3 पुट कर दिया, and 3 cannot be equal to 3 square, so we can say that this does not belongs to the first relation R. So we can say that no. Okay, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. सेकंड, AB belongs to R. This implies that BA is also belongs to R. हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लें, A के लो 2 लेट कर लो, A के लो 4 लेट कर लो, और B के लो 2 लेट कर लो. ठीक है, इस तरह से हमने A और B के लो लेट कर ली, A के लो 4 और B के लो 2 लेट कर ली. ठीक है, सो यहाँ 4,2 लिखेंगे, 4,2 बिकॉज A के लो 4 लिए, B के लो 2 लिए. अब ये क्या कर रहा है, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. वाई, बिकॉज हमें बताया 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, बिकॉज A इक्वल्स टू B स्क्वायर. A के प्लेस में 4, B के प्लेस में 2 पुट कर दिया, तो A इक्वल्स टू B स्क्वायर. इट मींस 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, दोनों तरफ 4 आ गया, ये बिलोंग कर रहा है. बट अगर हम 2 4 की बात करें, क्योंकि अब हमने AB की बात की है, AB R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब BA भी R को बिलोंग करना चाहिए. तो A के प्लेस में 4 लिखा, B के प्लेस में हमने 2 लिखा है. अब हम BA लिखेंगे, तो B के प्लेस में 2 और A के प्लेस में 4 लिखेंगे. अब इसको चेक कर लो क्या ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो देखो A के प्लेस में हमने 2 लिखा और B के प्लेस में हमने 4 लिखा, तो यू कैन सी हियर 2 इज नॉट इक्वल टू 4 के, बिकॉज ये 2 हो गया, 16 हो गया, नॉट इक्वल. सो वी कैन सी दैट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर. इज इट ओके? तो ये रिलेशन में हमारा क्या होगा, फॉलो नहीं हो रहा. हाँ जी आयुष, अंडरस्टूड बेटा? आयुष नॉट लिसनिंग, वेरी गुड. आनंद, यस सर. अंडरस्टूड? यस सर. चरणप्रीत, यस सर. ओके. प्रियंका, यस सर. ओके. नाउ से आगे देखेंगे थर्ड रिलेशन.
अब थर्ड रिलेशन हमारे पास आ गया, थर्ड रिलेशन इज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हमने इस तरह से करना है कि ए रिलेशन क्या है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम ए की वैल्यू ऐसे लेट करेंगे जो, और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ऐसे लेट करेंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करती हो, ठीक है। तो आप सोचो कुछ वैल्यू ऐसी जो आपको समझ में आ रही हो, इसको फॉलो कर दे। सोचो भाई, ऐसी कोई वैल्यू आप सोच रहे हो ए और बी के लिए जो ए बी और बी सी को तो बिलोंग कर जाए, कम से कम ए बी और बी सी के लिए बिलोंग करे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a equals to 81, b equals to 9 और c equals to 3। इस तरह से मैंने assume किया, ठीक है। a equals to 81, b equals to 9, c equals to 3। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें a b belongs to r को, तो what is a is equals to 81, 9। this belongs to r, yes, because 81 equals to 9 square, because a equals to b square, okay। and BC मतलब 9 3, BC मतलब 9 3 is also belongs to R, because 9 का ये हो गया हमारे पास। अब BC तो यहाँ पर 9 and 3 स्क्वायर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये A है ये B है, तो A के प्लेस में 9 आ गया और B के प्लेस में 3 आ गया अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। क्योंकि यहाँ पर हमने B और C लिखा तो ये B इक्वल्स टू C स्क्वायर आएगा, तो B के प्लेस में 9 और C के प्लेस में यहाँ पर 3 स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गए, बट अगर हम थर्ड रिलेशन की बात करें, दैट इज व्हाट, हमारे पास आ गया AC। AC मतलब वैल्यू ऑफ A इज 81 एंड C इज वैल्यू इज 3। अब हमें इसे चेक करना है, दिस बिलोंग्स टू R और नॉट। तो 81 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, बिकॉज हमें ये A है ये B है और A की वैल्यू B के स्क्वायर के इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन होनी चाहिए। हमने देखा कि 81 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, सो वी कैन से दैट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये भी रिलेशन जो हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये तीनों के तीनों रिलेशन हमारे सेटिस्फाई नहीं हो रहे फॉर द गिवन रिलेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, let A is given, this is 1 2 3 4 and the B is given 1 5 9 11 15 and 16 and the function f is given, so we will write the function f 1 5 2 11, ओके दीज। अब हमारे पास ये दे दिया, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, सेट A इज गिवन, सेट B इज गिवन। अब f हमें ये रिलेशन डिफाइंड गिवन है, हमें इस तरह से f एक रिलेशन गिवन है, हमसे पूछ रहा है f इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B और नॉट। हमें ये चेक करना है f A से B में रिलेशन है या नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा फिगर से अगर एक्सप्लेन करना चाहें हम, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन A में 1 2 3 4 एलिमेंट्स होंगे और B में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 5 9 11 15 एंड 16। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हो गए, ठीक। अब ये जो एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, ये A हो गए ये B हो गए, हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन है या नहीं है। तो आप देखो 1 का रिलेशन किससे है, 5 से, 2 का रिलेशन 9 से, 3 का रिलेशन 1 से, 4 का रिलेशन 5 से, ठीक है, एंड 2 का रिलेशन 11 से। तो आपने क्या देखा, ये रिलेशन आपको दिया हुआ था, अब आप इसको एक्सप्लेन करना है कि इस f इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब A से B में रिलेशन है या नहीं है, यस डेफिनेटली यू कैन सी हियर, ये एक रिलेशन है, डेफिनेटली इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। A से B में यह रिलेशन ही होगा। हम फिगर में देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट, जैसे 1 है 1 5 से भी कनेक्टेड है, 2 है 9 से कनेक्टेड है, 2 है 11 से कनेक्टेड है। मतलब हमने ये बात की थी ना कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती हैं। जैसे 1 की एक इमेज है लेकिन 2 की 2 इमेजेस है, 9 एंड 11। तो 2 9 2 11 इज अ वन एलिमेंट। 3 की एक इमेज है 1, 4 की एक इमेज है 5, ठीक है।
तो ये क्या हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है। बट अब दूसरा पूछ रहा है इफ इट इज अ फंक्शन और नॉट, नो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि हमारे पास 2 की 2 इमेजेस आ रही हैं, 2 की 2 इमेजेस हैं 9 एंड 11, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं यस दिस इज अ रिलेशन, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैविंग 2 इमेजेस, 2 की एक इमेज 9 है, 2 की एक इमेज 11 है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ओनली अ रिलेशन। Just here we are going to explain the terms only. तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, अब उसको बस आपने अपने टर्म्स में लिख लेना है। नाउ सी द नेक्स्ट, आगे देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, F be a subset of Z cross Z और F क्या है? दिस इज अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, इसका सबसेट है। F डिफाइंड कैसे है? दिस इज AB, sorry A into B, that is A plus B, such that A and B both belongs to the integers, and हमें given है F is a function from Z to Z, this is a mapping, it means function from Z to Z, justify your answer। हमें ये चेक करना है ये इससे फंक्शन है या नहीं है, समझ में आई? हमें क्या चेक करना है, ये इसका फंक्शन है या नहीं है। तो ये फंक्शन तभी होगा जब एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक इमेज होगी तो ये फंक्शन है। अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा 2-3 इमेजेस आ गई तो ये फंक्शन नहीं होगा, एक रिलेशन हो जाएगा। अब चेक करो यहां पर, अगर हम लेट करो, हमने लेट कर लिया, एक ये लो 1 लेट कर ली, ठीक है, हमने क्या किया, एक ये लो 1 लेट कर ली, और ऐसे ही बी के लो कुछ लेट कर लो, बी के लो हम मान लो 2 लेट कर लेते हैं, 2 लेट कर ले, ए के लो 1 लेट कर ली, बी के लो 2 लेट कर ली, तो ये हमारे पास एलिमेंट क्या बन जाएगा, दिस इज 2 1 जा 2 बन गया, और ये बन गया 2 + 1 3 बन गया, है ना? आगे देखो, इसके लिए नहीं बन रहा है ना, कुछ और सोचते हैं। ए के लो 1 लेट कर लेते हैं, बी के लो 4 लेट कर लेते हैं, चलो ठीक है, ए के लो 1 बी के लो 4, तो 4 1 जा 4 आ गया, और अब इसके अकॉर्डिंग 1 + 4 कितना आ गया, दिस इज 4 और 5 बन गए। अब हमने फिर से लेट कर ली, ए के लो 2 और बी के लो 2 लेट कर ली, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस इज 2 × 2 हो गया, दिस इज 2 + 2 हो गया, तो अब यहाँ पर 4 आ गया, 4 आ गया, तो आपने क्या देखा कि 4 की एक इमेज तो 5 है और 4 की एक इमेज 4 है, तो 4 की 2 इमेजेस आ गई, 4 की एक इमेज 5 आ गई और 4 की एक इमेज 4 आ गई, 2 इमेजेस आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन। तो आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल को एज्यूम कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 1 4 लिया, 2 2 लिया, आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है, बात समझ आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास आई थिंक कितने क्वेश्चन रह गए अभी, और सर 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट। चलो फिर आफ्टर दिस क्वेश्चन और this chapter is over now. Now in the next session we will start with a new chapter, chapter 3rd. Okay, this is a very important chapter, chapter 3rd. Last question is left, 12. The function a is given, set a is given 9 10 11 12 13, and the function f is given from a to n, ठीक है, फ्रॉम a to n। a कोई सेट है, ये हमें दिया हुआ 9 10 11 12 13, और n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट हो गया तुम्हारे पास। और डिफाइन कैसे है, fn इज डिफाइंड बाय
द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर किसका प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, then we have to find the range of f, we have to find the value of range of f, मतलब उसका सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है हमने, जब फर्स्ट एलिमेंट हमें दिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ एफ एन, एन क्या है, ये वैल्यूज हो गई हमारे पास 9, अगर हम 9 की बात करें, ठीक है, अगर हम 9 की बात करें f9, तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा, 3 होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 9 का फैक्टर हमारे पास 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, बट हमें प्राइम फैक्टर चाहिए, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। दूसरा नंबर है f10, f10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 and 5 होंगे, 2 and 5 होंगे, हाईएस्ट कौन होगा, 5 होगा, तो वी विल टेक द वैल्यू 5 ओनली। और 5 11, f11, 11 का फैक्टर तो 11 ही होगा, बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर और इसका कोई और फैक्टर नहीं बनेगा। 12 की बात करें तो 12 का फैक्टर एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, प्राइम फैक्टर तो यही होंगे, प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए, 1 2 आएगा और 3 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3। f13 की बात करो, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 13 ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या इनकी इमेजेस फाइंड आउट कर ली हैं, हमें इमेजेस ही फाइंड आउट करनी थी कि इनकी इमेजेस क्या आएंगी, तो हमने इमेजेस निकालनी है, 3 आ गया जी, 5 आ गया जी, 11 आ गया एंड 13 आ गया, तो दीज आर द इमेजेस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज ऑफ f फाइंड आउट करनी है, तो रेंज ऑफ f हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 11 आ गई, 13 आ, बस, क्योंकि ये 3 दो बार रिपीट हुआ, हमने दो बार नहीं लिखना, just single time we will write here 3 5 11 13, this is the range of this function. So today I have discussed most of the question of this exercise miscellaneous, and all questions was clear to all of you or not. Any problem you have then you can ask, we have just 5 to 6 minutes left.